Bismillahirrahmanirrahim. Today topic mutual induction. Phenomena of the production of the induced current in one coil due to change of the current in the neighboring coil is called the mutual induction. Repeat it again. Phenomena of the production of the induced current in one coil due to change the current in the neighboring coil is called the mutual induction. Now this is the experiment. This is A coil and this is B coil. A coil is connected with the switch S and the battery, and the K mean keyboard and battery के साथ इसको connect. It is connected with the switch, battery and the keyboard. And there is present the one other coil which is known as B, written as B. It is connected only the sensitive galvanometer. When the switch of the coil A is pushed down, current may pass through it and some lines of force will be produced. Some lines of force when produced, few lines of force can pass through the coil B, although there is no electrical connection between them. But in the B secondary coils and the secondary coils, their galvanometer show the current. It is called the primary coil, it is called the secondary coil. I repeat it again. This experiment consists of the two coils. One is known as A and second known as B. A is connected with the switch, battery and the keyboard, and the second B coil is connected with the sensitive galvanometer. When switch of coil A is on, and then current will be produced. Few lines of force can pass through the coil B, and when pass through the coil B, current will be produced, and the galvanometer needle show the deflection of the current. When continuous the current, the value of the current become constant, and the value of the magnetic lines of force become constant, and no deflection will be produced. It means when the value of the magnetic lines of force become constant, current will be zero. When we off the switch, lines of force come back from the coil B to coil A, and the current will be produced in the opposite direction. अब हम इसको यूँ कह सकते हैं कि जब किसी एक कोयल में करंट की तब्दीली की वजह से दूसरे कोयल में करंट इंड्यूस हो जाए, एक सर्किट में कोयल का एक सर्किट है या कोयल का एक कोयल है, उसमें करंट को तब्दील किया जाए, एक कोयल है उसमें करंट को तब्दील किया जाए तो दूसरे कोयल में करंट इंड्यूस हो जाए, इस मज़र को क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं. शक्ल में दो नज़दीकी कोयल दिखाए गए, एक कोयल ए है और दूसरा कोयल क्या है? बी है. इनको एक दूसरे के करीब रखा गया है मगर इनमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मौजूद नहीं है. कोयल ए को स्विच और बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, जबकि कोयल बी को सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा गया है. जब कोयल ए के स्विच को ऑन करते हैं तो चंद लाइंस ऑफ फोर्स पैदा हो जाती है, इसमें करंट गुजरना शुरू हो जाता है. करंट गुजरने के दौरान लाइंस ऑफ फोर्स पैदा होते हैं, चंद लाइंस ऑफ फोर्स कोयल बी में से गुजरती हैं और गैल्वेनोमीटर की उसी डिफ्लेक्शन को क्या करती है? ज़ाहिर करती है. अब अगर इसके स्विच को ऑफ कर दिया जाए, पहले यह है कि करंट को मुस्तकिल जारी रहने दें. जब जारी रहेगा तो लाइंस ऑफ फोर्स की कीमत भी क्या हो जाएगी? मुस्तकिल हो जाएगी और करंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. अब इसको स्विच को ऑफ करेंगे तो यहाँ से करंट ज़ीरो से दोबारा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स वापस आना शुरू हो जाएंगी और गैल्वेनोमीटर की सुई अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन को क्या करेगी? शो करेगी. हम इसको यूँ बयान कर सकते हैं कि चक्र में दो कोयल दिखाए गए, एक कोयल ए है, सेकंड कोयल बी है. एक कोयल को स्विच और बैटरी के साथ जोड़ा गया है और बी कोयल को सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा गया है. एक कोयल के स्विच को ऑन करते हैं तो करंट पैदा हो जाता है, लाइंस ऑफ फोर्स पैदा हो जाती हैं. फ्यू लाइंस ऑफ फोर्स कोयल बी में से गुजरती हैं. जब कोयल बी में से गुजरती हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई करंट की मौजूदगी को ज़ाहिर करती है. करंट को ऑन रखें, करंट की कीमत क्या हो जाएगी? मुस्तकिल हो जाएगी. जब करंट की कीमत मुस्तकिल हो जाएगी तो करंट की वैल्यू जब कांस्टेंट हो जाती है तो करंट की कीमत क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की नीडल नो डिफ्लेक्शन शो करेगी, कोई इसमें डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, कोई गैल्वेनोमीटर की सुई हरकत नहीं करेगी. अब अगर इसको ऑफ करें, लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगी? वापस आएंगे. जब लाइंस ऑफ फोर्स वापस आएंगी तो गैल्वेनोमीटर की सुई मुखालिफ सिंध में हरकत करेगी, जो ये ज़ाहिर करती है कि करंट की कीमत क्या होगी? अपना मुखालिफ सिंध में होगी. ज़ीरो से दोबारा बढ़ना क्या होगी? शुरू हो गया, लेकिन अब करंट की सिमत क्या होगी? मुखालिफ होगी. अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पहला ये म्यूचुअल इंडक्शन की तारीफ करें. डिफाइन द टर्म म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन की तारीफ क्या है? अगर किसी एक कोयल में करंट की तब्दीली की वजह से दूसरे कोयल में करंट इंड्यूस हो जाए, इसे मज़र को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं. ये 152 पेज पे है. किसी एक कोयल में करंट की तब्दीली की वजह से दूसरे कोयल में करंट इंड्यूस हो जाए, इसे मज़र को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं. नाउ 152 पेज. Phenomena of the production of the induced current in one coil. Phenomena of the production of the induced current in the one coil
due to the change of the current in the neighboring coil is called the mutual induction. Phenomena of the production of the induced current in a one coil. Phenomena of the production of the induced current in the one coil due to change of the current in the neighboring coil is called the mutual induction. इसकी जो सेकंड क्वेश्चन में बना है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कीमत कब मुस्तकिल हो जाती है? व्हेन डज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिमेन कांस्टेंट? पेज 152 पे इसका आंसर मौजूद है। जब कोयल में ए में करंट की कीमत क्या हो जाती है? मुस्तकिल कीमत पर पहुंचती है। तो गुजरने वाले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कीमत क्या हो जाती है? मुस्तकिल हो जाती है। कोयल ए में जब करंट की कीमत मुस्तकिल हो जाती है, कोयल ए में, इस कोयल में जब करंट की कीमत मुस्तकिल हो जाती है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट इन द कोयल ए रिमेन कांस्टेंट, व्हेन द वैल्यू ए when the current of the value A become constant, then the magnetic lines of force in the other coil become constant. It may be noted that A में करंट को जब कांस्टेंट रखा जाता है तो B में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कीमत क्या हो जाए? उसी में गुजरने वाले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। When current in a coil A become constant, the value of the magnetic lines of force in that coil become constant. वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिकम कांस्टेंट इन दैट कोयल। ये आज का टॉपिक था, इसको याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।